Ego is image conscious. अहम अपनी उस छवि की बहुत परवाह करता है. Ego is image conscious. A person operating under ego is constantly trying to fabricate this false image so that people would serve them, so that people would like them. They don't want to see the reality. They don't want anybody to see the reality. They want to show people this facade. जो लोग अहम के अधीन जीते हैं वो नहीं चाहते कोई भी उनकी असली रूप को देख ले, उनकी असली तस्वीर को देख ले. इसलिए वो एक ऐसी ढोंग की तस्वीर बना करके रखते हैं और बहुत मेहनत करते हैं कि उसको बरकरार रखा जाए, किसी भी तरह से किसी को उनकी असलियत ना दिख जाए. And although they might look perfect from the outside, but inside this thing keeps eating them. To nobody till today has been able to maintain that false image. You will become miserable if you try to do that. और बाहर से वो खूबसूरत दिखाई देंगे लेकिन अंदर ही अंदर से ये बात उनको खुद को खाती चली जाएगी कि वो एक ढोंग की जिंदगी जी रहे हैं, एक नकली तस्वीर बना करके जी रहे हैं. और कोई भी आज तक उस नकली तस्वीर को बरकरार नहीं रख पाया, चाहे कोई भी क्यों ना हो. You know, God cannot heal that part of you that is not real. परमेश्वर आपके उस अंश को चंगा नहीं कर सकता जो असली ही नहीं है. Are you getting what I'm saying? If I put a false feet and I'm walking and it gets hit and it's not a real feet, it's a false feet, leg, whatever, and I go to a meeting and there's a healing evangelist and he comes and lays hands on my false feet, do you think my feet is getting healed? No, because it isn't a part of me. So many people don't get healed because they don't want to show God their real picture. और अगर मैं एक नकली टांग लगाकर घूमूं और उसको गाड़ी उसमें एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी लग जाए और मैं किसी चंगाई सभा में जाऊं, क्या परमेश्वर मेरी उस नकली टांग को ठीक करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत से लोग अपने जीवन का वो नकली हिस्सा परमेश्वर को देना ही नहीं चाहते और ना ही परमेश्वर उसको चंगा कर सकता है. If I can say it this way, what you don't reveal won't get healed. अगर मैं इस तरह से कहूँ, जिस बात का आप खुलासा नहीं करेंगे वो कभी चंगी नहीं होगी. Have you heard? I mean, like, people come to me and they say, oh, Bhaiya, that person is in a problem, but he has told me, भैया को मत बताना, क्योंकि मेरी इमेज खराब हो जाएगी चर्च में. And they live in misery year after year after year because they don't want their image. And that's stupid. If you really love us as if we are really elder brothers, you should run to us. We should have those people, those safe houses where we can go and we can show our real self and not worry about what they will think about us. कभी कोई मेरे पास आके बोलता है कि भैया उसने ना ये बोला है, लेकिन ये बोला है साथ में कि आपको ना बताऊं, क्योंकि उन लोगों को चिंता है कि उनकी छवि मेरी दृष्टि में खराब हो जाएगी तो कलीसिया में उनकी छवि का क्या होगा. और इस कारण से लोग साल दर साल एक बदतर से बदतर जिंदगी में बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो परवाह करते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं उससे ज़्यादा कि उनके अंदर क्या चल रहा है. And so many times this person will not come and share things with us because if they do, they might appear bad to this person. This is also ego. और कितनी बार जिससे अगर कोई कुछ बताता है अपनी कमी तो वो आकर के हमसे नहीं बोलते, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी तस्वीर खराब हो जाएगी इस व्यक्ति की आंखों में. Let me give you a permission today. Anybody who tells you don't tell Bhaiya, the first thing you should do is call us and tell us. Because otherwise that person will live in that pit for years. इसीलिए मैं आप सबको एक इजाज़त देना चाहता हूँ. आज से अगर कोई भी आपको कभी कहता है ये बात भैया को मत बताना, तो सबसे पहले हमें कॉल करके बताना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सालों तक वो लोग एक गड्ढे में पड़े रह जाएंगे. You know, one pastor shared a testimony. I don't want to give his name because it's very sensitive. But he was sharing his testimony that how he was suffering with piles from ears. एक पासवान ने अपनी
आप बीती घटना बताई थी और मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा कैसे सालों से उनको पाइल्स की बीमारी थी He was suffering. और वो उससे जूझ रहे थे अकेले। And he never wanted to go to doctor because to go to doctor, he will have to be naked before the doctor. And he was so ashamed. और वो डॉक्टर के पास इसलिए जाना नहीं चाहते थे उस बीमारी से जूझने के बावजूद, क्योंकि उनको पता था जब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मुझे नंगा होना पड़ेगा, और वो बहुत शर्मिंदा थे इस बात के लिए। And for years he went through that trouble till in the end when he had to go, and later after surgery he got well, and then he said, why didn't I go for so many years? और बहुत सालों तक जूझने के बाद जब और नहीं झेल पाए तो फिर अंत में जाकर वो डॉक्टर के पास गए और उनकी सर्जरी हुई और वो ठीक हो गए। और तब वो बाद में सोच रहे थे मैंने इतने साल बर्बाद ही क्योंकि ये पहले ही चले जाता तो जूझना तो ना पड़ता कम से कम। Can I tell you one thing? एक बात बताऊं, The more real you are, the more joyful you will be. जितने असली आप हैं या जितने असली आप जिएंगे उतने खुशी से भरकर जिएंगे। Because then you'll not have to think about what I have said to that person about this person, or what I have to, there will be no calculations, you will be as you will be. क्योंकि दिमाग में कोई गणित नहीं चल रही होगी कि मैंने उसको क्या झूठ बोला है, उसको क्या झूठ बोला है, उसके सामने क्या कहानी बनाई है। आप जैसे हैं वैसे जिएंगे सबके सामने। And Bible clearly tells us in the book of James, it says, if you want to be healed, confess your trespasses to one another, go and say sorry, build relationships, be okay to show yourself weak. It should be okay to say, man, I am sorry, I was weak that day, I said that to you, I'm sorry. और याकूब की किताब में बाइबल साफ कहती है कि एक दूसरे से जा करके एक दूसरे के विरोध में जो आपने अपराध किए उनको कह दो और परमेश्वर तुमको चंगा करेगा। अपने आप को कमज़ोर दिखा दो एक दूसरे के सामने जाकर के, कह दो भाई मुझे माफ़ करना, उस दिन मैंने ऐसा किया था, मैंने ये किया था। I want to tell you the story of a king who lost his calling because of being image conscious. मैं एक राजा की कहानी बताना चाहता हूँ आपको, जिसके जीवन पर जो बुलाहट थी राजा होने की उसने वो गवा दी, क्योंकि वो परेशान, वो इस बात की चिंता करता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। The Bible talks about this king called King Saul. बाइबल बात करती है इस राजा की जिसका नाम था राजा शाऊल। Just like Cain, he was the first king of Israel, the first person, the first king anointed by God. जैसे केन पहला बेटा था वैसे ही शाऊल भी पहला राजा था इज़राइल देश का, जिसका अभिषेक किया गया था राजा के रूप में। But Saul was completely absorbed with himself. He had a great sense of image consciousness. लेकिन शाऊल अपने आप में ही इतना खोया हुआ था, उसको बहुत परवाह थी कि उसकी छवि सबके सामने कैसी है। And then a time came where God rejects him. और उसके कारण एक ऐसा समय आता है जब परमेश्वर उसको ठुकरा देता है। And God sends prophet Samuel to King Saul, and prophet Samuel tells him that God has rejected you. और परमेश्वर शामुएल नबी को उसके सामने भेजते हैं और शामुएल आके उससे कहते हैं कि परमेश्वर ने तुम्हें राजा के रूप से ठुकरा दिया है। Now I get shocked when I read something like that. और मैं हैरान हो जाता हूँ जब मैं ऐसा कुछ पढ़ता हूँ तो। The response of King Saul when he heard that the Lord has rejected him. शाऊल का क्या उत्तर था इस बात पर कि जब परमेश्वर ने उसको ठुकरा दिया है, आकर के उसको बताया शाऊल। You want to know it, church? सुनना चाहते हैं? Okay. 1 Samuel 15:30. पहला शामुएल 15 उसका 30। 1 Samuel 15:30. I was thinking, King Saul, how can you be so stupid? और मैं सोच रहा था कि शाऊल राजा इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? Why did you do that? ऐसा क्यों किया? Then he said, I have sinned, yet honor me now. और वो कहता है मैंने पाप तो किया है तो भी मेरा आदर कर। Please. कृपया। He's a king. वो राजा है Rejected by God. जिसको परमेश्वर ने ठुकरा दिया। What was important? To be in the will of God or to be seen as a king before people? क्या जरूरी था, परमेश्वर की इच्छा में खड़ा होना या फिर लोगों के सामने राजा के रूप में खड़ा होना? You know, recently somebody was telling me about the church, that this is not the right church, this is not the right teaching. I told them, I said, you know what my prayer is?
if this is not the right church, then God should shut it today and I'll be very happy. और कोई I will not feel any pain because I want to be in the will of God. If this church doesn't fulfill the will of God, let it shut today. This is my prayer. But if it's in the will of God, the gates of hell will never prevail against it. और कोई मुझसे कह रहा था कि ये सही कलीसिया नहीं है, आपकी शिक्षा सही नहीं है, और मैंने उनसे कहा अगर ऐसा है तो परमेश्वर आज ही इस कलीसिया को बंद कर दे, क्योंकि मैं उसकी इच्छा में होना उत्तम समझूंगा अपने अहम में रहने से। और अगर ये कलीसिया परमेश्वर की इच्छा की अनुसार है तो नरक के फाटक इसके खिलाफ प्रबल नहीं हो पाएंगे। Amen. We didn't sign up for this, me and Sam, that we'll become pastors. And I'm telling you, if tomorrow God tells us to do something else, we'll gladly do it. Because the joy is to be in the will of God. और हम लोगों ने ये करेंगे सोच करके कभी कुछ नहीं शुरू किया था। अगर परमेश्वर आज बोलता है बंद कर दो तो हम लोग बंद कर देंगे और वो करेंगे जहां हम परमेश्वर की इच्छा के बीच में हैं। This is not our eternal calling. ये हमारी अनंत की पुकार Our थोड़ी है। eternal calling is to be a son. हमारी अनंत की पुकार है परमेश्वर की औलाद होना। And you know what is the mandate of a son? The mandate of the son is to represent the father. और एक बेटे के जीवन का मकसद है अपने पिता को पूरी तरह दर्शाना। Look at King Saul. He's like, okay, guys, can you put that scripture again? So, he knows he has sinned. राजा शाऊल को पता है उसने पाप किया है। And he is telling this to Samuel after he has been confronted. और जब शामुएल ने आके उसको बता दिया है कि तूने पाप किया और परमेश्वर ने तुझे ठुकरा दिया है, तब वो ये बात कह रहा है। I have sinned, yet honor me now, please. हाँ मैंने पाप तो किया है लेकिन फिर भी इस समय मेरा आदर कर प्लीज। Before the elders of my people and before Israel. मेरी प्रजा के पुरखों के सामने और इज़राइल के सामने। And return with me that I may worship the Lord your God. और मेरे साथ मिलकर बाहर वापस चल ताकि मैं परमेश्वर की आराधना करूं। Why did he want it? He doesn't want to worship God. वो परमेश्वर की आराधना करना नहीं चाहता He's था। not saying I want to worship. He said, go with me, let's worship the Lord so that it looks normal like we do every day. So that nobody will know that I am rejected by God. वो ये कह रहा है कि शामुएल मेरे साथ बाहर चल और रोज की तरह ऐसे आराधना कर जैसे कुछ बदला नहीं है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर ने उसको ठुकरा दिया, उसको ये फर्क पड़ता है कि लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, लोगों को लगे मैं बहुत अच्छा हूं। It's crazy. He didn't care a bit about what God thinks about him. All he cared about is what people think about me, and that's what ego does. उसको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, और उसका सारा ध्यान इस बात पर था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी प्रजा मेरे पुरखे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और यही है जो अहम करता है। He's like, that's okay if God has rejected me. उसने कहा कोई बात नहीं, Honor me before people. लोगों के सामने We are about to go out. हम बाहर चलते हैं, So you honor me as king. तो मेरा ऐसे आदर कर जैसे मैं राजा हूँ, And we'll worship together. और हम साथ मिलकर आराधना करेंगे। Nobody will know that I am rejected. किसी को कानों कान खबर नहीं होगी कि मैं ठुकरा दिया क्यों। What would have happened if Saul would have repented? Don't you think God would have restored the kingdom back to him? क्या हुआ होता अगर शाऊल उस समय परमेश्वर के सामने माफी मांगता, क्या परमेश्वर ने उसको वापस लौटाना दिया Or होता? maybe even if he have not got the kingdom, और हो he सकता would है- still operate as a son. और हो सकता है ना भी लौटाया होता, फिर भी वो एक बेटे की तरह तो जीता। And if you see, you know, David committed much bigger sin than Saul. और अगर आप देखें तो दाऊद ने शाऊल से कई ज्यादा बड़ा गुनाह किया। And in the same way, when David, slept with that woman, God sent again a prophet to David. Prophet Nathan went and he confronted David. और उस स्त्री के साथ व्यभिचार करने के बाद परमेश्वर ने दाऊद के सामने नेथन को भेजा, उसके नबी को भेजा। And when it struck David that he has committed a sin, the Bible says he fell flat on his face and he asked forgiveness. और जिस समय नेथन ने आकर के दाऊद का सामना किया, उसको बताया कि तूने अपराध किया है परमेश्वर के सामने, बाइबल बताती है दाऊद उसी समय नतमस्तक हो गया जमीन पर, परमेश्वर के सामने आ गया गिड़गिड़ाते हुए। David didn't care that he will look weak before Nathan or how his image would be. The moment he got this awareness that I have committed a sin, he fell flat on his face and he repented, and God forgave David. दाऊद को ये फर्क नहीं पड़ा कि मैं कमजोर दिखाई दूंगा अगर मैं इसी समय यहाँ पर ऐसे लेट गया, अगर मैं गिड़गिड़ाने लगा परमेश्वर से इन सब के सामने।
जैसे ही उसको ये पता लगा कि उसने अपराध किया है, वो अपने मुंह के बल आ गया और रोने लगा परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया। Amen. So this is my request to you. This is what I'm living for. That rip off every kind of image consciousness. ये मेरी विनती है आपसे, और इसके लिए मैं जी रहा हूँ कि अपने जीवन से हर एक तरह की जो ये छवि को अहमियत देना है, उसको अपने जीवन से अलग कर दें। So many people say, oh, nobody can build relationship with me, nobody can love me. Yeah, because you're wearing so many masks. कुछ लोग How कहते can हैं, people have a relationship with somebody who wears a mask? कुछ लोग कहते हैं कोई मेरे साथ रिश्ता नहीं रखता, कोई मेरे साथ रिश्ता नहीं रख सकता, क्योंकि आप इतने सारे मुखौटे पहने हुए हैं, कोई आपसे रिश्ता रख कैसे पाएगा? When we take off every mask and be who we are, when you allow people to see your strength, when you allow people to see your weaknesses, then they can truly love you. जब आप वो सारे मुखौटे अलग कर देंगे और लोगों को दिखा पाएंगे आपकी क्या मजबूतियां हैं और क्या कमजोरियां हैं, जब आप वास्तविकता में जैसे हैं वैसे जी पाएंगे, तो बहुत आसान होगा लोगों के लिए आपसे रिश्ता रखना। You know why me, Ram, Sam, we have this kind of relationship? Because we are real with each other. I don't operate like a pastor with them. They don't live like that with me. We are friends. We know each other's strength. We know each other's weakness. We know when we have relationship with each other, we know each other's heart. हम लोग आपस में इसीलिए ऐसा रिश्ता रख पाते हैं क्योंकि हम एक दूसरे के साथ ढोंग नहीं करते, असलियत में जैसे हैं वैसे रहते हैं, दोस्तों की तरह रहते हैं, एक दूसरे के बल जानते हैं, एक दूसरे की कमजोरियां जानते हैं। The assignment is not to look perfect, guys. The assignment is to fulfill your Father's will. जो काम आपको सौंपा गया है वो ये नहीं है कि आपको सिद्ध दिखाई देना है, जो काम आपको सौंपा गया वो ये है कि अपने पिता का दिया गया काम पूरा करना है। Amen.